کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا سنگین معاملہ بنا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار کے تھرو پیغام بھجواتے ہیں، خود وزیر اعظم پاکستان ایک نہیں کئی دفعہ اس پہ آپ کو آفر کی جاتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتی؟ جی بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ. ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں میجورٹی ارکان نے مسلم لیگ نون کے ساتھ نہ چلنے کا جو ہے نا وہ مشورہ دیا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہوگا تو پنجاب کی سطح پہ جو ہمارے تحفظات تھے ہمارے رہنماؤں کے وہ کمیٹی بن گئی ہے. کمیٹی کی ایک یا دو میٹنگ ہے. اس کے بعد کمیٹی نے آگے چل کے مسئلے کو پنجاب کی سطح پہ جہاں ہمارے ایم پی اے اور ایم این اے کے علاقوں میں ان افسران کو لگایا گیا ہے جو پیپلز پارٹی کے اینٹی کہلاتے ہیں. تو اس کے علاوہ کاموں میں ہے. اس کے بعد جو ہماری تحریری معاہدہ تھا ان کے ساتھ پنجاب کی سطح پہ اس پہ عمل کرانا تھا. اب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ انہوں نے 6 کینال جو نا دریا سندھ سے نکالنے کا شوشہ چھوڑا ہے. آپ مجھے بتا دو 12 لاکھ ایکڑ زمین کس کو دی ہے, اس کی جو ہے نا وہ کیا میرٹ بھی دیے ہے, کیا ان کے نام جو ہے نا میں آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کیا پنجاب حکومت اس کو شائع کرے گی کہ وہ 12 لاکھ ایکڑ کن افراد کو دیے اور کس میرٹ پہ دیا. اور پھر اس کے بعد آپ دریا سندھ میں پانی نکال رہے ہیں. ہمارے رہنماؤں نے قومی اسمبلی میں آواز اٹھایا وہ مختلف فورم پہ, لیکن مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی حصے پنجاب کے حصے سے پانی دیں گے. اب تھوڑی دیر کے لیے اگر میں عام سلیس اردو میں عوام کو سمجھانے کے لیے بات کروں, دریا سندھ جو آر ہے گلیشیر سے, اس میں مثال کے طور پہ 10 ڈرم پانی ہے. 10 ڈرم میں عام عوام کو سمجھانے کے لیے 10 ڈرم پانی میں 5 پنجاب کے اور 5 سندھ اور بلوچستان کے. اب آپ مجھے بتا دو کہ اگر اوپر سے 10 ڈرم پانی آ نہیں رہے, وہاں سے سمجھ لو 6-7 آ رہا ہے, تو پنجاب کو 5 کیسے ملے گی؟ یقیناً اس کا کوٹا کم ہوگا. تو پھر اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس 5 ڈرموں میں ہم جنوبی پنجاب کو یعنی چولستان کو دیں گے. تو جب آپ 5 کے 5 لیں گے تو پیچھے تو 1-2 ڈرم بچیں گے, تو سندھ بلوچستان کو تو ریگستان بن جائے گا. یعنی سرسبز پاکستان بنانے کے لیے بڑا اچھا اقدام ہے. آپ چولستان کو سرسبز بنا رہے ہو مگر سندھ سرسبز کو آپ چولستان بنا رہے ہو. یہ پالیسی تو میں کہتا ہوں کہ سندھ دشمنی کی پالیسی ہے, یہ پالیسی تو بلوچستان دشمنی کی پالیسی ہے. اچھا اس کے بعد وہ 2 میٹنگ ہمارے وہیں پہ رکے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں مسلم لیگ نون والے کہ ہماری کمیٹی کی بات چلے, کوئی بات نہیں کی ہے. اس کے بعد وہ معاملہ منقطع ہو گیا. اچھا جب آپ یہ کہتے ہیں مندو خلیل صاحب, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ممبران نے فیصلہ کیا ہے, میجورٹی کا یہ کہ ماننا تھا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے, تو نہیں چلنا چاہیے میں مراد صرف اور صرف کابینہ کا حصہ نہ بننا ہے جس سے ابھی تک آپ انکار کر رہے ہیں, یا پھر ادروائز بھی؟ کیونکہ سب سے بڑی اتحادی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی خود کہتی ہے کہ اگر آج ہم ڈیسیجن لے لیں ان سے پیچھے ہٹنے کا تو یہ ایک دن بھی حکومت نہیں کر پائیں گے. پھر وہاں سے آپ کو تانا یہ ملتا ہے کہ آئینی عہدے تو آپ نے رکھے ہوئے ہیں, تو ایک طریقے سے تو آپ شامل ہیں. اب آپ کے سوال کے اندر بہت سارے سوالات تھے, مجھے اگر باری باری آپ جواب دینے تھے. پہلے تو مطالباتی میں بات کروں. شہباز شریف صاحب پکنک بنانے کراچی آتے ہیں, وہ کہ پچھلے الیکشن میں میں نے اس کو نائل کرنے کے لیے درخواست کی, تو نالی سے بچنے کے لیے وہ کراچی سے چلا گیا. یہ سب کے اوپر آیا ہے, میں نے اس وقت بھی حامد میر کی شو میں یہ بات کی تھی. تو اس کے بعد K4 منصوبہ جو پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے, اس وقت بھی 172 ارب روپے درکار ہے. تو میں ایم کیو ایم کے گورنر سے جو چوچوراپن میں اور ان چیزوں میں وہ ہر مرتبہ آگے ہوتا ہے, اور وفاق اور پتہ نہیں کس کا نمائندہ ہے, ان کو یہ میں کہوں گا آپ کی توسط سے کہ آپ شہباز شریف صاحب سے کہہ دینا 172 ارب روپے رکھ لے تاکہ کراچی کا پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. دوسری طرف جو شہباز شریف صاحب کو اور میرا علاقہ اور مخبر خاص مصطفیٰ کمال جو اس وقت بٹھایا گیا, وہاں کے فائی منصوبہ نے بنایا تھا خورشید شاہ صاحب کی منسٹری میں, وہاں پہ عین وقت پہ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دی. الحمدللہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے 12 ارب 72 کروڑ کا پانی کے لائنیں ہمیں دیے, اور وہ ہب ڈیم سے کام چل رہے ہیں, اور اگست میں انشاءاللہ وہ پانی سٹارٹ بھی ہو جائے گا. اس کے بعد اگر 21 لاکھ مکانات کی جہاں سندھ پانی سے سیلاب کی وجہ سے ڈوبا تھا, وہاں بلاول بھٹو صاحب نے جو اعلانات کیے تھے 21 لاکھ مکانات, وہاں وفاقی حکومت اپنا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. پکنک منانے میں دوبارہ کہوں گا کراچی تو دوڑے آتے ہیں. اس کے بعد جہاں 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے, سندھ اور بلوچستان میں,
वहाँ सी अथॉरिटी बनाया गया, वहाँ हमारे 2 सूबाई हुकूमतों को या पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अब ये तो सारे हमारे मुतालबात है, अगर इसमें कोई मुतालबा गलत है तो बता दी यार ये नाजायज है। मुतालबात में कहते भी है, इनके रहनुमा आपके दूसरे चैनल में आते हैं, बोले जायज है। अच्छा, अब काबीना की तोसी क्यों नहीं की है? काबीना तोसी किस वजह से होती है? अब परवेज खट्टक का क्या लेना देना? वो काउंसलर भी उसके पास नहीं है, उसको मुशीर दाखिला बना लिए। ओन अब्बास को, ओन चौधरी को उन्हें लिया, उसका क्या किरदार है आपको पता है सबको। मैं एक चीज ये कहूंगा कि आपने सबसे बड़ी इत्यादी या सपोर्टर आपके 70 MNA के साथ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, आप उनको नाराज किए बैठे हुए हैं, और आप एक एक सिंगल लोगों को जो ना आप काबीना में आपने तोसी करके उसको लिए, तो उसका क्या मतलब है? तो मैं ये समझ रहा हूँ, अगर किसी ने इनको कान में बोला है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो ये उनकी गलतफहमी होगी। आप मुझे बताओ, सिंध का बच्चा इस 6 कैनाल के खिलाफ खड़ा है। कल भी ओखला की बहुत बड़ी जो है ना वो रैली आई और ये एहतजाज चल रहा है, और खुद मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर शाह मोहम्मद शाह साहब की 6 कैनाल सिंध के पानी से। तो मैं ये बता दूं कि ये पता नहीं कुछ खुशफहमी में मुस्लिम लीग नून वाले, नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के पंजाब हुकूमत में तो तंदूर पे खड़े हो नजर आते हैं, लेकिन वफाक में नहीं आते। लेकिन मुझे ये ख्याल है, आपके सवालों का लुबाब में बता दूं कि मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की मरकज में जरूरत नहीं है। अच्छा, उनसे सवाल करते हैं तो वो बड़ा उनका, ठीक है, उनसे सवाल ही जब करते हैं तो उनका बड़ा एक स्टैंडर्ड जवाब है कि जी हम तो चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ काबीना का भी हिस्सा बने। देखें वजीर आजम ने भी कितनी दफा ऑफर किया है, इसहाक डार साहब खुद जाके जरदारी साहब से मिल के आए हैं, वो आते ही नहीं है। आप मुझे बताओ, आईनी ओहदिया हमने लिया, बिल्कुल हमने लिए, हमने फ्री में को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फ्री में अगर नहीं किए तो आप बचाओ वज़ीर आज़म को हमें दे देता, हम वो सदारत उसको दे देते, वो तो एग्री थे नहीं है। आप मुझे बताओ, सदर के इख्तियारात इतने, पिछले सदारत में आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के जरिए तमाम इख्तियारात जो 58(2) वगैरह वगैरह थे, जो हुकूमतों को खत्म करने के इख्तियारात थे गुलाम इसाक खान के वगैरह वगैरह, फारूक लगारी के दौर के, वो सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दे चुके हैं। गवर्नरों के हमारे इख्तियारात ये है, जो फीका ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसके बाद हमारा गवर्नर 2 दिन के लिए दुबई चला गया, तो उन्होंने कायमकाम गवर्नर स्पीकर से वो कानून पास, ये हमारे इख्तियारात है। सेनेट के चेयरमैन के ये इख्तियारात थे। 2 महीने से हमारे सेनेट के चेयरमैन ने बाइकाट किए, क्योंकि पीटीआई के सेनेटर हिजाज चौधरी साहब के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया था, जो कि कल तक उन्होंने नहीं बात क्या कराता है। अब आपका सवाल है कि आप हुकूमत के साथ क्यों लगे, इसका सवाल जवाब ये है, आप मुझे बता दो कि मुस्लिम लीग तो चाहती है कि वो वफाक से जान छुड़ाए, क्योंकि पंजाब में वो लग रहे हैं कि 60 सफात के इश्तिहारात लगा के चचा भतीजी अरबों रुपए की जो 27,000 अरब जो कर्ज दिए दुनिया भर से भीख मांगने का, वो अपने खुशामदी में इश्तिहारात पे शाये कर रहे, अपना शो कर रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी वफाक से अलग हो जाए तो आप मुझे बता दो क्या कौमी असम्बली कायम हो सकती थी? ठीक है, वो आपने जैसे खुद कहा कि 70 MNAs के साथ जो जमात बैठी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको आखिरी जुमला सुन ले, आखिरी जुमला सुन ले। आप मुझे बता दो कि अगर पीपल्स पार्टी वफाक से अलग हो जाती, क्या मईशत बेहतर होगी? क्या दहशतगर्दी पे काबू पाया जा सकता है? क्या अगर नया इलेक्शन हो तो पीटीआई उस पे एतबार करेगी, उसको मानेगी? तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो टाइमिंग है ना, ये भी बड़ी क्रूशल है। ये ठीक है मंदोखेल साहब, बिल्कुल सही है, आपके वैलिड कंसर्न्स हैं। अब ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि आपकी लीडरशिप की इस पे बात भी हुई है नून लीग के साथ, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है ना वो बड़ी क्रूशल है। अब एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पीटीआई बाकी जमातों को इकट्ठा कर रही है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाह रही है, तो ईद के बाद जो मुमकिन एक तहरीक हुकूमत मुखालिफ है, जिसके अभी तक तो 2 ही मुतालबात सामने आ रहे, 3 बल्कि, एक खान साहब की रिहाई है, एक फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा है जो कि हुकूमत के जाने के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मुझे बताइए कि फिर आप लोग हुकूमत का साथ देंगे? जैसे आपने कहा कि वो 70 MNAs हट जाते हैं तो हुकूमत भी गिर जाती है विफाक के अंदर, अदरवाइज PMLN की पोजीशन काफ़ी वीक हो जाएगी अगर पीपल्स पार्टी जो है हाथ खींच लेती है। सादिया, पश्तो में कहावत है कि अगर यही हालात है तो मुझे आप मरा हुआ समझे। अच्छा, अगर यही हालात, यही इनकी तकब्बुर के निशानात है तो आप पीपल्स पार्टी की तरफ से ना ही समझे। मैं नहीं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। और मेरी जाती हिस्से से मैं कहूंगा कि अल्लाह करे आपका शो खत्म होने से पहले ही पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से अलग हो जाए। बात यह है, मैं एक चीज ये बताऊं कि अगर आप इस तरह आप
तकब्बुर के फैसले कर रहे हो, और अगर हम काबीना का हिस्सा होते तो फिर क्या होता? फिर तो आप कहते हैं आप ही तो वजीर बैठे हुए, आपके लोग तो बैठे हुए, कम से कम अभी आप ये तो नहीं कह सकते हो कि जो काबीना के फैसले उसमें हम शरीक नहीं है। लेकिन ये बड़ा आपने सख्त मौक़िफ़ दिया है कि शो ख़त्म होने से पहले ही आपकी ख्वाहिश और दुआ है कि पीपल्स पार्टी अलग हो जाए नून लीग के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ। तो ये कहीं पीपल्स पार्टी का आईनी ओहदे छोड़ने का भी कोई इरादा है या नहीं? क्योंकि जैसे गवर्नर्स का जिक्र किया, पहले पंजाब के गवर्नर थोड़ा सा तनकीद या अपने कंसर्न्स दिखाते थे, कुंडी साहब खामोश रहते थे KPK में, अब तो वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। अब तो वो भी वज़ीर आज़म से शिकवे कर रहे हैं कि जी आप थोड़ी तकलीफ़ करें, खैबर पख्तूनख्वा का विज़िट करें। देखिए सादिया, मैं ये कहूंगा कि आईनी ओहदों का जब पहला मरहला का फैसला होगा तो उसका फैसला भी हो जाएगा, क्या करना है। लेकिन आप मुझे बता दो, जब वफाकी हुकूमत नून लीग की नहीं रहेगी तो उनके पास गवर्नरों को हटाने के इख्तियारात भी नहीं रहेगा, उनके पास सदर पाकिस्तान को हटाने का इख्तियारात भी नहीं रहेगा। ये भी आप ज़हन में रख ले। लेकिन हम उस तरफ नहीं सोच रहे, जो पार्टी फैसला करेगी, जो हमारे बड़े फैसला करेंगे उसके मुताबिक होगा। ठीक है, लेकिन ये भी बताइए कि अगर आपने ये कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, आपको नहीं लगता कि नून लीग का या वफाकी हुकूमत का साथ देगी, इस ग्रैंड अलायंस का साथ देगी, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा खदशात हैं, उनके भी जो मुतालबात हैं वो यही है ना कि हुकूमत ख़त्म हो, हुकूमत घर जाए, आप फ्रेश इलेक्शंस चाहते हैं। देखिए, हमने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमने PTI को ऑफर की है कि गो कि आप सिंबल पे नहीं जीते मगर आजाद लोग भी आपके हैं, आप मत बनाए, हम आपको गैर मशरूत तौर पे सपोर्ट करते हैं जी। तो शायद PTI का ये ख्याल था कि भाई ये हुकूमत तो 4 दिन में गिरेगी तो लिहाजा साथ तो क्यों दे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो गलतफहमी तो उनकी दूर हो गई है। यकीनन पीपल्स पार्टी जब तक साथ है वो वफाकी हुकूमत को कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आज अभी अगले मिनट में हट जाए तो वफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि PTI या ग्रांड अलायंस कहां से बनेगा, क्योंकि PTI जो ना मौलाना साहब को धोखा दे चुकी है, PTI MQM को धोखा दे चुकी है, PTI अख्तर मेंगल साहब को धोखा दे चुकी है, PTI महमूद खान अचकज़ई साहब को धोखा दे चुकी है, PTI मंजूर पश्तून की PTM को धोखा दे चुकी है। तो आप मुझे बताओ उसका साथ कौन देगा, उन पे भरोसा कौन करेगा? अगर हम उनके साथ एहतियात बना ले तो ये सारी चीजें हमने भी मद्देनजर रखना हो कि PTI ने किस किस के साथ धोखा किए, किस के साथ दगा किए, तो क्या हमारे साथ तो कल नहीं करेंगे। तो ये सोच समझ के फैसला किया गया है। चलें, वेरी इंटरेस्टिंग। आप कहते हैं कि हुकूमत का साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं देगी, हुकूमत मुखालिफ तहरीक अगर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस लेकर निकलता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस चीज़ पे भी कन्विंस्ड हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के बनने के चांसेस ही बहुत कम हैं। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखी जॉइनिंग अस ऑन द शो टुडे।